یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں ہندوستان کے صوبے جھارکھنڈ کے ٹاٹا نگر یعنی جمشید پور میں۔ جی ہاں، ٹاٹا نگر جمشید پور کے ذاکر نگر مانگو میں موجود کبیر وومنز انٹر کالج کے سالانہ فنکشن کے موقع پر ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے کے کنوینر رہے سماجی کارکن جناب محمد ضیاء المبین انصاری صاحب، جو ممبر ٹرسٹی ہیں کبیر ویلفیئر ٹرسٹ جمشید پور کے۔ کبیر ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں جناب محمد فہیم صاحب۔ کبیر ویلفیئر ٹرسٹ اپنے کئی اداروں کے ذریعے ادبی اور سماجی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس مشاعرے میں تمام شعراء کا انتخاب شاعر جناب سعید احسن صاحب نے کیا۔ جی ہاں، جناب سعید احسن صاحب جمشید پور ٹاٹا نگر کی نمائندگی ہندوستان کے مختلف مشاعروں میں کر رہے ہیں۔ دوستو، جب سعید احسن صاحب نے اپنے اشعار سے لوگوں کو نوازا تو لوگ کھڑے ہو کر واہ واہ کہنے اور داد دینے پر مجبور ہو گئے۔ کل ملا کے انہوں نے اپنے سچے اور اچھے اشعار سے لوگوں کا دل جیت لیا۔ یوں تو انہوں نے بہت کم پڑھا کیونکہ ایک میزبان کی حیثیت سے وہ اس مشاعرے میں تھے، تمام شعراء کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، لیکن جتنا ٹائم انہوں نے پڑھا انہوں نے لوگوں کا دل جیت لیا۔ دیکھیے یہ ویڈیو۔ آپ کو صرف یاد دلا رہا ہوں، جمشید پور میں یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ یہ اردو غزل ہے جو ہر وقت کے ساتھ چلتی رہی ہے، وقت کے ساتھ انصاف کرنا اس نے خوب سیکھا ہے اور دوسروں کو سکھایا بھی ہے۔ 19ویں صدی کا شاعر ضرور یہ کہتا تھا کہ پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کیوں۔ لیکن جب ہم 20ویں صدی میں داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا شاعر برجستہ یہ کہنے لگتا ہے کہ بھوک میں جانے مجھ کو یارو کیسا کیسا لگتا ہے، مجھ کو تو روٹی کا ٹکڑا چندہ جیسا لگتا ہے۔ جب ہم اور آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا شاعر یہ بھی کہتا ہے، اس صدی میں 21ویں صدی کے دہانے پر کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ دیکھ خونے دل سے گلکاری کا موسم آ گیا، چل غزل تیری خریداری کا موسم آ گیا۔ دوستو، یہ وہی اردو غزل ہے جس نے کہاں سے بات شروع کی تھی اور کہاں تک آئی ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کو آئینہ دکھانا اس غزل سے سیکھیے۔ اس غزل میں بار بار وقت کو آئینہ دکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ہم کس دور سے گزر رہے ہیں۔ آئیے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مشاعرے میں اس شاعر سے درخواست کروں جس نے اس دور میں، آج کے دور میں جو ہندوستان کے بڑے مشاعروں میں جمشید پور کی نمائندگی کر رہے ہیں، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب یہ کٹک میں ہوا کرتے تھے، تب سے میں جانتا ہوں، اور آج جمشید پور میں جب ان سے ملتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس شاعر نے نہ صرف دو شعر کہہ کے مشاعرے میں پڑھنا سیکھا ہے بلکہ وہاں کے ادبی فضا کو اور خوبصورت بنانے کا بھی ایک ذمہ داری اپنے سر اس نے لے رکھی ہے۔ یہ نام ہے جناب سعید احسن صاحب کا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ مائک پر جناب سعید احسن صاحب۔ حضرات، چند متفرق اشعار آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایک مطلع اپنی ذات کے حوالے سے رکھتا ہوں۔ عرض کیا ہے کہ موسم میں خزاں کے میں بہاروں کی طرح ہوں، موسم میں خزاں کے میں بہاروں کی طرح ہوں، مفلس ہوں مگر راجکماروں کی طرح ہوں۔ موسم میں خزاں کے میں بہاروں کی طرح ہوں، مفلس ہوں مگر راجکماروں کی طرح ہوں۔ آئیے اب یہیں سے میں اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 4 مصرے سماعت فرمائیں۔ عرض کیا ہے کہ ہمارے عہد میں انسان ڈھونڈتے کیوں ہو، ہمارے عہد میں انسان ڈھونڈتے کیوں ہو، جو کھو گیا ہے وہ ایمان ڈھونڈتے کیوں ہو۔
हमारे ऐज में इंसान ढूंढते क्यों हो, जो खो गया है वो ईमान ढूंढते क्यों हो, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो, हराम पैसों से परहेज जब नहीं करते, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो, हलाल गोश्त की दुकान ढूंढते क्यों हो। आइए और मैं अपने सफर को आगे बढ़ाता हूं। हमें बहुत सारे, हमने अपने मुल्क को टुकड़ों में बांट दिया है, सूबों में बांट दिया है, सरहद की लकीरों में बांट दिया। उस हवाले से चार मिसरे समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है कि सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, सफर लंबा सही, सरवर भाई, सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है, पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है, ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले, कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले। सफर लंबा सही लेकिन बहुत आसान था पहले, न बांग्लादेश की सरहद न पाकिस्तान था पहले। पड़ोसी मुल्क से नफरत करें ये दिल तो कहता है, ये कैसे भूल सकते हैं वो हिंदुस्तान था पहले, ये कैसे वो हिंदुस्तान था पहले। अक्सर अखबारात में, टेलीविजन पे ये देखने को मिलता है कि मुसलमानों को हिंदुस्तान से चला जाना चाहिए। जिन्हें जाना था वो 1947 में चले गए। अब जो लोग हैं यहाँ अपनी मर्जी से हैं और खुशी से हैं और बहुत खुश भी हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। चार मिसरे इसी हवाले से समाप्त फरमाएं। अर्ज किया है कि जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए, जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। जो अजनबी दयार में हाजिर नहीं हुए, अहकाम उन पे जुल्म के सादिर नहीं हुए। अच्छा किया कि रह गए हम अपने मुल्क में, सरहद के पार जाके मुहाजिर नहीं हुए। और चार मिसरे समाप्त फरमाए। अर्ज किया है कि हो जज्ब रहमतें ऐसी जमीन थोड़ी है। वाह, हम लोगों के दरमियान ये बात चलती रहती है कि फलां हुकूमत आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, फलां हुकूमत आ जाएगी तो वैसा हो जाएगा। इसी तनाजुर में चार मिसरे देखें कि हो जज्ब रहमतें ऐसी जमीन थोड़ी है, हो जज्ब रहमतें ऐसी जमीन थोड़ी है, हम अहले दी हैं मगर दिल में दीन थोड़ी है। बहुत अच्छी। हो जज्ब रहमतें ऐसी जमीन थोड़ी है, हम अहले दी हैं मगर दिल में दीन थोड़ी है। हुकूमतों पे निगाहें टिकाए बैठे हैं, हुकूमतों पे निगाहें टिकाए बैठे हैं, खुदा की जात पर हमको यकीन थोड़ी है। हुकूमतों पे निगाहें टिकाए बैठे हैं, खुदा की जात पर हमको यकीन थोड़ी है। बहुत खूब। हुकूमतों पे निगाहें टिकाए बैठे हैं, खुदा की जात पर हमको यकीन थोड़ी है। और चार मिसरे, अभी कुछ हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, उनके साथ भी हादसा पेश आया था, मैं नाम लेना नहीं चाहता, उन्हीं के नजर करता हूँ ये चार मिसरे, मुझे लगता है कि बात पहुंच जाएगी। अदनान साहब वहां बैठे हुए हैं। अर्ज किया है कि अगर इंसाफ का जज्बा दिलों में सर्द हो जाए, अगर इंसाफ का जज्बा दिलों में सर्द हो जाए, मलविस जुर्म में इस मुल्क का हर फर्द हो जाए। वाह, अगर इंसाफ का जज्बा दिलों में सर्द हो जाए, मलविस जुर्म में इस मुल्क का हर फर्द हो जाए, उठाकर जेल के अंदर ना डालो बेकसूरों को, उठाकर जेल के अंदर ना डालो बेकसूरों को, शरीफ इंसान भी ऐसे में दहशतगर्द हो जाए। उठाकर जेल के अंदर ना डालो बेकसूरों को, शरीफ इंसान भी ऐसे में दहशतगर्द हो जाए। उठाकर जेल के अंदर ना डालो बेकसूरों को, शरीफ इंसान भी ऐसे में दहशतगर्द हो जाए। और चार मिसरे समाप्त फरमाए कि वो अपने कान से
वो अपने कान से पूरी कहानी देख लेता है, वो अपने कान से सारी कहानी देख लेता है, वो कब मजलूमियत की बेज़बानी देख लेता है। वाह! वो अपने कान से पूरी कहानी देख लेता है, वो कब मजलूमियत की बेज़बानी देख लेता है, वो कब मजलूमियत की बेज़बानी देख लेता है। मेरे कानून ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, मेरे कानून ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है, मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है। मेरे कानून ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, मेरे कानून ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है, मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है और मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है। और 4 मिसरे अर्ज किया है कि वो अपने कान से सारी कहानी देख लेता है, वो अपने कान से सारी कहानी देख लेता है, वो कब मजलूमियत की बेज़बानी देख लेता है। मेरे कानून ने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है, मगर रंगों में रंगे ज़ाफ़रानी देख लेता है। और 4 मिसरे समाप्त फरमाएं कि नफ्स को तुम गुलाम कर लेना, नफ्स को तुम गुलाम कर लेना, अपना ऊंचा मुकाम कर लेना, नफ्स को तुम गुलाम कर लेना, अपना ऊंचा मुकाम कर लेना। दिल में पैदा ना होगा कोई गुरूर, दिल में पैदा ना होगा कोई गुरूर, मुफलिसों को सलाम कर लेना। बहुत हो, वाह वाह वाह। नफ्स को तुम गुलाम कर लेना, अपना ऊंचा मुकाम कर लेना, दिल में पैदा ना होगा कोई गुरूर, मुफलिसों को सलाम कर लेना। आखिरी 4 मिसरे के बाद मैं आपसे रुखसत होता हूँ, मेहमान शोरा यहाँ मौजूद हैं। अर्ज किया है कि देखिएगा हुजूर मारेगा, देखिएगा हुजूर मारेगा, एक ना एक दिन जरूर मारेगा, देखिएगा हुजूर मारेगा, एक ना एक दिन जरूर मारेगा। उड़ रहा हूँ अभी हवाओं में, उड़ रहा हूँ अभी हवाओं में, मुझको मेरा गुरूर मारेगा, मुझको मेरा गुरूर मारेगा। दोस्तों, ये थे जनाब सईद अहसन साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान के जो भी जलते बुझते मौजू हैं उन तमाम पर निशानदेही कर रहे थे। यहां तक कि आज दहशतगर्दी के हवाले से भी उन्होंने बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा है। मैं इनकी आवाज में आवाज मिलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि आला दर्जा के जो दहशतगर्द हैं फारिन में हैं, आला दर्जा के जो दहशतगर्द हैं फारिन में हैं, और राजधानी में है कुछ तो कुछ वीरप्पन में है, छोटे दहशतगर्द तो इस मुल्क के कनकन में हैं। हम तो बस बेकार ही ये सोचकर टेंशन में हैं। दोस्तों, आज मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान में कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिसे हम स्लोगन बनाने लगते हैं, और उस स्लोगन के हवाले से हुकूमत अपना काम करती है, और जो जिनका नाम एक विपक्ष अपोजिशन होता है वो भी वही काम करती है जो हुकूमत करती है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू बन जाते हैं। दोस्तों, आइए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान के सूबे झारखंड के शहर टाटानगर में, जिसे आप जमशेदपुर भी कहते हैं। और आज यहाँ कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज में एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा का आयोजन किया गया, और कबीर वुमेन्स इंटर कॉलेज के ट्रस्टी जनाब जियाउल मुबीन अंसारी साहब की देखरेख में ये मुशायरा ऑर्गेनाइज किया गया। उम्मीद करता हूँ ये मुशायरा आपको अच्छा लगा होगा। ये मुशायरे का एक वीडियो नहीं है, बहुत जल्द ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट www.mushairalive.com पर देख सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरा मुशायरा आपको YouTube पे भी मिलेगा। YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप mushairalive.com वेबसाइट पे विजिट कीजिए और YouTube चैनल को हमारे विजिट कीजिए। आप हमसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन इम्तियाज के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए झारखंड के शहर टाटानगर से।